दूसरी डिवाइस बगल में है। It's ओके it's okay. Okay. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। म्यूजिक वरांडा के सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा on yet another Facebook Live of Music Veranda. Let us kick this evening off with a wonderful song which I'm sure that all of you have heard. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रौंदी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल कर दी, मायरी याद वो मायरी, हे मायरी। अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी, अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी। सो वेलकम वन एंड ऑल। और एक खास वजह है कि मैंने आज शाम की शुरुआत इस खूबसूरत नगमे के साथ करी है, और वो वजह ये है that today we will be celebrating independent music. We'll be talking about independent music. अब ये independent music भला क्या है? This is actually music which is produced independently from commercial record labels. And we are living in DIY era, and there are hundreds of musicians who have actually done it themselves, and they are carrying the flag of independent music and creating songs जो श्रोताओं को, लिसनर्स को एक अलग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ हटके जो हिंदी फिल्म म्यूजिक से। Some famous bands that we have had the pleasure of listening to over the years are Indian Ocean, Euphoria, और एक समय पे हमने बैंड ऑफ बॉयज के गाने भी एंजॉय करे हैं, और इंडियन स्पाइस गर्ल्स वीवा के गाने भी एंजॉय करे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जुड़ चुके हैं म्यूजिक वरांडा के प्लेटफॉर्म पर। म्यूजिक वरांडा इज एन इनिशिएटिव दैट वाज बोर्न एट द हाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020 विद द इंटेंशन ऑफ कनेक्टिंग पीपल एंड हीलिंग पीपल थ्रू द पावर ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक वरांडा एक इकोसिस्टम है जो कि म्यूजिक, सस्टेनेबिलिटी और सीनियर वेलबींग के एरियाज में काम करता है। एंड न्यूमरस रेस्पेक्टेड नेम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ मूवीज लाइक देवी दत्त जी, ब्रह्मानंद सिंह जी, विशाल चिल्के जी, तुषार भाटिया जी have blessed Music Veranda with their presence. Music Veranda has hosted special guests like Shikha Bohra ji, who is daughter of famous composer Anil Biswas ji, and many other dignitaries, and we have celebrated their legacy and their work. And today we have got a very special guest with us who is an independent musician himself, and it is really an honor introducing this wonderful artist, Sanket Banker ji. First of all, let us unmute ourselves and just give him a round of applause. And as I introduce him, Sanket Banker ji is a versatile independent singer with over 1 lakh subscribers on YouTube. He has to his credit over 20 original songs across multiple languages such as Hindi, Bengali and Nepali. Sanket ji has sung multiple original songs, most notably for Shri Shupurno Kanti Ghosh, who is known for his timeless classic Coffee House. He has also sung official anthems of prestigious colleges like IIM Kozhikode and Jadavpur University. And Sanket ji के songs, उनकी performances मीडिया में भी कवर किए जा चुके हैं, टेलीविजन चैनल्स पर, रेडियो में भी। And apart from his passion for music, Sanket ji is an accomplished investment banker and fund manager with experience at TRG and JP Morgan, and currently working as the managing director at TRG, which is a US-based प्राइवेट इक्विटी फंड। पर संकेत जी, आज हम इन्वेस्टमेंट फंड्स और वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल संगीत की, गानों की, म्यूजिक की। सो द वर्चुअल स्टेज इज योर्स। प्लीज एड्रेस दिस वंडरफुल इवनिंग संकेत जी, ओवर टू यू। पहले तो थैंक यू सो मच दीप्तेंदु। पहले तो मैं
बधाई देता हूँ. The great, the way you beautifully sang Mayuri, one of the kind of hallmarks of independent music in India. Thank you for my introduction. Probably I don't, it's not, worth the length what you spoke about, but you spoke so beautifully. Thank you for that. I'm so glad to be here. I've been on this platform multiple times. बहुत बार जुड़ चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ. हर बार आता हूँ कुछ नया सीख के जाता हूँ. इतने बड़े बड़ी हस्तियां आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे. मेरे कुछ दोस्त आए हैं जिनके साथ हम लोगों ने बहुत ही important growing years spent किया. Like Gaurav Sharma, for example, my batchmate, who's a die-hard R.D. Burman fan, as you all know. We've learned so much from him. Devi Dutt ji hain, one of my biggest inspirations, who's given classics like Masoom, Lakdi Ki Kathi, who can and worked in close quarters with some of the legends of that era. I'm so blessed. Every time I come to Music Veranda, it's just so much that I take away from here, and I see all the young budding singers singing so well, so beautifully. Really glad to be here. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. This is so wonderful, Sanket, to have you. जब भी आप म्यूजिक वरांडा आते हो बहुत अच्छा लगता है, and we have a very good connection with you. So thank you so much. And today we are on a special talk. We want to know a lot about independent music, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे independent music बन रहा है इंडिया में, लेकिन हम लोगों को एक organized way में हम लोगों को पता नहीं है. So there are a lot of young artists also who would like to know, who are part of this show and who will see the recording. So tell us a little about independent music in India. Over to you. Sure. I think what Diptendu mentioned, he mentioned some of the really, some of the stalwart bands जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना niche बनाया था. To add, Indian Ocean बताया. Then he spoke about Viva, all these bands, plus a lot of singers had their own, niche. Like Sonu Nigam came with his, swashbuckling blockbuster album called Deewana. Then KK came with all these songs, Yaro and, Pal, all those beautiful. Mohit Chauhan came with songs like Duri, Duriyam, all those gems, that underwater song. Those was such beautiful songs. And there was that era in the early 90s when, it blossomed. Primarily because we were switching from the 80s का, very पता नहीं, मतलब कुछ लोग अपनी तरह से म्यूजिक बना रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो ट्रेंड चल रहा था वो थोड़ा डिस्को एंड पार्टी का चल रहा था. So there was some space there where all these independent singers who could bring a new kind of voice and a new kind of melody and entire musicality to the scene, और उनको बहुत ज़्यादा acceptance मिला. बहुत ही ज़्यादा, and those experimentations were so nice, and many of them actually ended up, and they were such great singers like Sonu Nigam ji and KK and all so much. Mohit Chauhan ji, they have made a huge space in our hearts, in our minds, in the entire the field of music, whether it comes to Bollywood or in independent music. But I think what has happened since 2000, because Bollywood music itself became quite rich, काफी सारे composers, compared to, I would say, Bollywood music was always very rich, and probably we can't compare the era before 80s or before mid 80s and the era post 90s, right? It's a very different. Electronic music came, live recording got replaced by studio recording, all the gadgets came, all the electronics came and everything. So it's a very different era. Can't compare the two. The pristineness जो सादगी थी 80s के पहले या mid 80s के पहले की गाने की, और जो मेहनत थी, और जो एक करिश्मा मैजिक होता था उन गानों में, so that I don't think can be replaced by any sort of, that's my personal opinion. But yeah, that entire sound changed from the 90s. फिर से melody आना शुरू हुआ, almost 20 साल, lots of melody, and Bollywood actually invested a lot of. Bollywood बोलते हैं, but right, it's the Hindi film industry. They started again thinking about music. बहुत सारे melody भरे गाने आने लगे. Independent music भी पनपने लगा.
पर बीच में फिर से थोड़ा इंडिपेंडेंट म्यूजिक गायब सा हो गया था. I think after 2019, 2020, particularly after the lockdown, or maybe slightly couple of years prior to that, एक ठहराव सा आ गया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक में. रिपीटिशंस हो रहे हैं, रिमिक्सेस हो रहे हैं. They are not experimenting too much with, they are not doing too much of melody in my view. They are experimenting a lot with beats, with instrumentation, with and some remixes and kind of regurgitating what is there already. जो legendary काम हो चुका है पहले, वो सब का थोड़ा सा churn हो रहा है. But what that gave is that gave space to independent music to come back again very strongly. लोग अपनी stories अपनी तरह से बताने लगे. And because it was very easy to set up home studios, and एक वो था कि अभी एक compulsion भी हो गया था lockdown के बाद कि लोग को अपने हिसाब से ही सब करना था independently. They couldn't go out and do it, so that actually acted as a boon, and a lot of these singers started becoming music producers. They started collaborating a lot more, not just physically but even online, and a lot more things got जैसे कहते हैं necessity is the mother of invention. तो वैसे ही बहुत कुछ आ गया उस टाइम पे, और वहीं से growth फिर से start हुआ. Even hip hop and all, it didn't start thinking that it will be really blow up. ऐसा कभी नहीं था कि वो छोटे छोटे हिसाब से ही वो शुरू हुआ. But then after Gully Boy and all, it really took off. और अभी तो it is kind of capturing a lot of the the limelight. तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं. काफी सारे नीश हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक में. जैसे काफी लोग सिंगर सॉन्ग राइटर हैं जो अपनी गाने बनाते हैं, लिखते हैं और म्यूजिक भी देते हैं. That's a very and उनका एक अलग ही, हर किसी का अलग साउंड, अलग मैसेज होता है. फिर कुछ और हैं जो कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ, जैसे मैं हूँ. मैं सब कुछ करने की मेरी क्षमता नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो बस सीख रहा हूँ. मैं यही शेयर कर सकता हूँ जितना मैंने बहुत ही थोड़ा बहुत सीखा है उसी से. I am a learner like everyone. As I said, every time I come on Music Veranda, I learn so much from everyone. Every day I'm learning, and there is no stop. There is no end to that. पर जो अभी और एक जो म्यूजिक है जो काफी अभी because अभी you can put up your own productions quickly. आप easily access कर सकते हो streaming platforms को, आप डाल सकते हो YouTube पे. तो काफी गाने जो अच्छे होते हैं, जिसका मैसेज होता है, लोगों के दिल के छूता है, it quickly becomes a hit. And there is no barrier about you have to go through a certain gate of the music labels. You can do on your own, and it's much more easier to get going on the independent music scene. That's my view. Again, मैं अभी बस सीख रहा हूँ. I am just a beginner is all I can say. And I'm learning every day from all my collaborators, everyone that I interact every day during the course of this journey. तो यही बस मुझे कहना है. That was amazing. That was Sanket ji. Clearly, the barrier simply no longer exists. A creator can just put his or her work out, be it stories, be it music, be it just a composition, and that has really exploded the whole music scene. And yes, there were independent artists earlier as well, but maybe they were somewhere down in the garage or maybe in a basement and really finding a way to get their work out. But now with YouTube and technology, it has become much easier. So Anila ji, आपने संकेत जी को एड्रेस किया, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने इतना अच्छा हमको इंट्रोडक्शन दिया इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बारे में, बट आपने जो है इस सभा को, इस शाम को अभी तक संबोधित नहीं किया है. ऐसे कैसे चलेगा? दीपेंदु, आपने इतना अच्छा स्टार्ट किया, और आई एम सो हैप्पी दैट दीपेंदु एंड संकेत, both engineers, in fact Sanket, he's an IIM alumni, and I just got to know that he's working at a very prestigious position. I am just wondering कि वो कैसे दोनों चीजें manage कर रहा है. So this in itself is an inspiration, and the way you have taken up independent music, it's really remarkable. It's really remarkable. You are an inspiration to so many, and I see a lot of young children. They are watching this show. They are just hoping कि हमें कुछ और पता चलेगा. So बहुत अच्छा लग रहा है दीपेंदु. I'm just enjoying the show. Please carry on. Thank you so much. Thank you all the viewers.
Thank you very much. And I can see that we have got Kshitij and Chaitanya, and both of them are learning from जयेश चंद्र मिश्र जी, जिनका नाम लेना म्यूजिक वरांडा के प्लेटफॉर्म पे बहुत जरूरी है, बिकॉज जयेश चंद्र मिश्र जी इज अ म्यूजिक टीचर एंड ही इज एन एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक टीचर एट दैट. ही इज grooming students across age groups, and we can clearly see that Chaitanya is really young. So is Kshitij. और देश भर में वो कई बच्चों को सिखा रहे हैं, और खास ख्याल रखते हैं वो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम वो बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे आने वाली पीढ़ी को दें, so that the foundation of the next generation, the musical foundation of the next generation is extremely solid. और उसी strong foundation पे जाके शायद कोई अगला संकेत बैंकर या फिर कोई अगला यूफोरिया टाइप बैंड या फिर कोई अगला इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट निकलेगा जो कि हमें और बहुत सारे खूबसूरत गाने बना के देगा. सो चैतन्या, आई कैन सी दैट यू ज्वाइंड क्वाइट लॉन्ग बैक. आप शुरुआत से हमारे साथ बने हुए. चैतन्य, कुछ गाना चाहेंगे आप हमारे लिए? कुछ भी, फिल्मी, नॉन फिल्मी, जैसा जो मन चाहे. मैं दीवाना मूवी का एक गाना गाना चाहूंगा, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार. बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है. प्लीज गो अहेड. चैतन्य, कैमरा स्टेबल रखो अपना, आपका कैमरा शेक करता है. You should put your camera somewhere. Yes. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. जाने मन हम ही तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. Thank you very much. That was beautiful. Thank That you. was absolutely beautiful. और Beautiful, Chaitanya. Beautiful. Thank you. such a melodious song that is. So, और हाँ. Okay, I'm curious to know journey of Sanket as an independent music composer, lyricist, and singer. So, Sure, Anila ji. Prompt him to answer this. Yes. Thank you, Anil ji. So, Anila ji, मेरी बचपन से मतलब मुझे अच्छा लगता था म्यूजिक, पर there was a series of, I think पहले भी एक सेशन में मैंने बोला था, series of tragedies which led me to music. I lost a year. I was a topper, but still I lost a year because I had very severe jaundice. In those days when I was lying in bed, उस टाइम पे FM आया था, तो मेरे घर के बाहर जो कॉम्प्लेक्स के जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते थे, वो रात को वो FM रेडियो बजाते थे, और वो सारे किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, उनके गाने बजते थे और मुझे नींद नहीं आती थी बिकॉज आई वाज वेरी इल. और मैं वहां से जो एक मेरे अंदर में वो ऐसा आया कि उसके बाद आई कुडंट लिव विदाउट म्यूजिक. इट इज, इफ समवन आस्क्स मी व्हाट इज द हाईएस्ट आइडियल, तो मुझे म्यूजिक ही लगता है. गॉड और म्यूजिक इज लाइक द सिनोनिमस टू मी. तो उसके बाद मुझे इच्छा तो बहुत थी, बट एज घर से support नहीं था, but I think they were looking for me to get settled and me to earn and be able to stand on my feet, ताकि मैं सक्षम हो सकूं. और उसके बाद तो मेरी माँ ने उस टाइम पे मुझे बोला था कि एक बार आप IIM चले जाओ, उसके बाद मैं आपको गाना गाने दूंगी. उस टाइम पे वो पढ़ती थी पेपर, पता था कि IIM वाले नौकरी वोकरी लग जाती है, लाइफ सेट हो जाता है. तो उन्होंने वो रिसर्च करके निकाला था, मुझे ये दिया था, तो फिर मेरा IIM लग गया. थैंक यू. मैंने आंख बंद करके जहाँ पे लगा मैं गया. फिर बाद में पता चलेगा इट्स वन ऑफ द गुड रियली गुड इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद पढ़ा then once you get into that mold where people are
very career oriented, एकदम उसी ढांचे में मैं कहीं पे I got molded, and 5-6 years I just totally forgot about music. Totally forgot. No, I call myself an accidental, musician. I have only accidents have made me realize that what my true calling is. So uske baad again I had a small accident in 2014. I was working like 18 hours a day at that time. और मुझे तभी पता चला कि अरे मेरी एक टाइम पे तमन्ना थी कि मैं गाना गाऊं, पर मैं ये कुछ और ही कर रहा हूँ. It's not that I'm not liking it. I'm liking it a lot, and it's I'm learning as well. I'm having a good lifestyle. But कहीं पे वो है कि जो करना चाहता था वो मुझे वो satisfaction नहीं मिल रही. तो उस टाइम पे 2014 में मैंने फिर से full fledged म्यूजिक सीखना शुरू किया. मैंने शंकर महादेवन एकेडमी में ज्वाइन की थी. उस टाइम पे they had started I think around 2 years ago. So मैंने उस टाइम पे थोड़ी फिर से रिवीजन क्लासिकल म्यूजिक सेशंस किए, काफी सारे प्रोग्राम्स एंड काफी सारे कोर्सेज अटेंड किए. एक बर्कली का एक ऑनलाइन कोर्स था, वो अटेंड किया. एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड लुकिंग कि कैसे म्यूजिक करें, बिकॉज हर इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? यू डोंट नो व्हाट द पाथ इज, पर मैं फिर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई वाज सिंपली अ सिंगर एंड आई यूज्ड टू जस्ट फोकस ऑन माय वोकल्स. पहले तो मुझे संगत चाहिए, राइट? आई नीड समवन हु कुड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. आई स्टार्टेड प्लेइंग, but then I thought that I was focusing more there, less on my vocals. I wanted to focus more on my vocals. तो फिर मैं ढूंढने शुरू किया कि कौन है जो एटलीस्ट एक गिटार बजा सके, एक पियानो बजा सके. फिर ढूंढते ढूंढते कुछ दोस्त मिले, वहां से उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया जो एक म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते थे. तो मेरी जो जर्नी थी बहुत ही मतलब it's like dots which you can only see got connected much later, but it was actually a very smooth path which was laid out. भगवान ने वो पाथ बना के दी थी. इनफैक्ट वीडियो का भी जो हमने म्यूजिक शुरू किया उसके बाद यूट्यूब पे म्यूजिक वीडियो डालना शुरू किया फ्रॉम 2018. वो भी इनिशियली किसके पास जाए, कौन म्यूजिक वीडियो करेगा? उस टाइम पे म्यूजिक वीडियो उतने होते नहीं थे, सिर्फ बड़े लेवल से म्यूजिक वीडियो करते थे 2017-18 में, और बहुत बजट होता था. तो हाउ डू वी डू देन? एक एसोसिएशन में दोस्त ने बोला कि आई कैन डू, मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने बोला कि आई कैन डू वीडियो, व्हाई डोंट यू गिव मी सम वीडियोस टू डू, बट फॉर दैट अगर हम लोग हायर करेंगे कैमरा, ये करेंगे वो करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट? सो लेट मी जस्ट इन्वेस्ट इन अ कैमरा, यू फंड इट, एंड देन वी विल डू अ लॉट ऑफ वीडियोस विद दैट एंड यू विल रिकवर. तो मैंने वैसा शुरू किया. व्हाटएवर केम टू मी आई जस्ट पिक्ड इट अप. yes man, जो भी आता है yes. तो वैसा आई हैड नो प्लान, बिकॉज मुझे पता ही नहीं, यू कांट टैप इनटू मेरे पास समय भी कम था क्योंकि ऑफिस करने के बाद मेरे पास वही लिमिटेड वीकेंड्स हैं, लेट नाइट्स हैं, उसमें करना है. सो आई हैड टू टेक अप व्हाटएवर वाज अवेलेबल. वहीं से एसोसिएशंस बढ़ते रहे, कोलैबोरेशंस होते रहे, एंड अभी तो मैं कुछ 5-6 टीम्स के साथ काम कर रहा हूँ with God's grace, including the likes of like music legends like Suparnoda. I have done 8 songs for him already, which will only one has released till now, and I'm planning to go again, and I just see it's like a huge blessing for someone like Suparnoda to pose his faith in me, because उन्होंने मन्ना दे के साथ he would have done close to 50 songs, even more. He has given songs to the biggest music maestros, be it Himant Da, Hemant Kumar, Bhupen Hazarika ji, everyone, so for him to work with him is like every moment I'm learning more. It is like years of knowledge being crunched into few hours, and उनका method बहुत ही जैसे पहले था वैसी है. Like you have to come, sit in front of the harmonium, he will play, you have to sing, you have to take every note properly, then only before you learn the song really by heart, he will not let you enter the studio. ऐसा नहीं है आजकल जैसा होता है स्टूडियो में जाओ, गाना वहीं पे सुनो, हाँ थोड़ा गुनगुना लो, वहीं पे गा लो, थोड़ा इधर उधर हुआ तो तुम्हारा कुछ तो मशीन भी कर सकता है. It's not like that. For him, you have to sit with him,
get the music proper. First of all, notes proper होने चाहिए, note, लय और सुर वो पहले होने के बाद then feel. तो फील कैसा होगा, हर एक गाने का वो खुद बोल देते हैं कि ऐसा फील होना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए, ये वर्ड में ऐसा फील होना चाहिए. तो he used to give his visual, you just follow him, एक point पे follow करो. तो it's such a blessing that from where I started, where it was just a few friends that we associated with, थोड़े से दो दोस्त थे, वहां से शुरू करके I have landed up in the feet of Suparnoda. It is just a huge blessing, and now I'm working with a lot of friends of mine who are doing some amazing music, and I'm really loving it. I give them full freedom. मतलब मुझे तो वैसे भी कुछ आता नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई दिल को छूना चाहिए. मेरा एक ही लिटमस टेस्ट है, दिल को छूना चाहिए, एंड ट्रेंड फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं एक चीज बोलता हूँ, ट्रेंड मत फॉलो करो, ठीक है. मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, मैंने भी किया है सारे ट्रेंड, बट एक मेच्योरिटी होता है. जब शुरू में सब कुछ आप कौन सक्सेसफुल हो रहा है उसके पीछे आप कॉपी करने जाते हो, वो मैंने किया है, राइट. कौन सक्सेसफुल है, हम लोग कभी उसके टाइप गाने की कोशिश करते हैं, कभी उसके टाइप की म्यूजिक सोचते हैं, पर कहीं पे ना उसमें इंडिविजुअलिटी भी छूट जाता है और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस देता नहीं है. मे बी it can work in the short term for sure, it can work for several years for that matter, बट मुझे अभी बिकॉज वो थोड़ा सा वो समय हो गया है, मैं अभी सोचता हूँ कि जस्ट जैसा है, and Suparnoda loves me for that, and I love him for believing in my voice. It is my voice, it is not anyone else's voice, and I don't जब भी कोई और कंपोजर मुझे बोलता है थोड़ा ऐसा करके गाओ, जो अभी थोड़ा ट्रेंड चल रहा है ना उस टाइप का थोड़ा फील दो, तो Suparnoda is very clear, just अपने वॉइस में गाओ. You don't have to do anything with your voice, you do that's your instrument, it is your guitar, it is your piano, you play it the way you want, but don't try to copy. If you are a a tanpura, don't try to be a guitar, you are a tanpura, so play like a tanpura, you will stand out of the crowd. तो यही है कि through this journey, ये पूरी जर्नी में इतना कुछ सीख पाया मैं, इतने लोगों के सानिध्य में आ पाया. I could learn so much from them, and I am just loving this. मतलब क्या बताऊं, I am just loving this journey now. Wow. And we can feel every word that has come out of your mouth, Sanket ji, सच में. और how blessed you are feeling to be just going through this beautiful journey of music in the tutelage of some legendary composers and musicians, and I hope you just continue to sing more, explore more, expand more, and grow more. और इंडिपेंडेंट म्यूजिक या कह लीजिए नॉन फिल्मी म्यूजिक, बिकॉज इंडिया में द मेन म्यूजिक इज फिल्म म्यूजिक, has given us so many beautiful melodies. Euphoria के तो खैर हम सभी fan हैं, because they do come up with rock songs which are peppy, fast paced numbers, but then you have someone like a Shubha Mudgal as well, who is a renowned classical singer, but she has come up with wonderful albums like अब के बरस, जिसका एक बहुत ही beautiful song है, जिसके 2 lines में आप लोगों के लिए गुनगुनाना चाहूंगा. सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, पढ़ना सीखो सरवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया. So this song has Beautiful. अलग अलग सेगमेंट्स हैं इस सॉन्ग में. यू कैन सी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ परकशन, एंड द सॉन्ग
working on different rhythms in different sections, and each section has got a different flavor. And I think when I was just looking through this song and album, 1999 was a great year for Indian independent music, because that's the year when the album Deewana came, and this album Ab Ke Baras also came out. So a trivia for all the listeners who have tuned in tonight. और मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ दिनेश जी और क्षितिज जी भी जुड़े हुए हैं. दिनेश जी, वेलकम. And I really admire Dinesh ji for being a music connoisseur. जिसे कहते हैं ना कान सेन. He's someone who has heard a lot of good music. और सुनना उतना ही जरूरी है शायद गाने से. गाना जरूरी है जितना शायद उतना ही जरूरी अच्छा सुनना है, और दिनेश जी अच्छा सुनने वालों में से. सो दिनेश जी, would you like to weigh in on this topic of independent music? कौन से ऐसे नॉन फिल्मी गायक या कंपोजर्स या बैंड्स या एक्ट्स हैं जो आपने सुने हैं जिन्होंने आपका अटेंशन ग्रैब किया? वैसे नॉन फिल्मी मैं कम सुना हूँ अभी तक. वैसे इंटरेस्टिंग सुनता हूँ, कभी कभी गाने आते हैं नॉन फिल्मी, अच्छे गाने, नए सिंगर्स के भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं. तो और पहले में जो याद है मेरे को, मैंने सुना था लकी अली जी के जो गाने थे ना, उनके जो एल्बम के, जैसे उनका था शाम सवेरे, उस सनम, बहुत ही, वो तो जितनी बार सुन लो उतनी बार अच्छा लगता है. तो इस तरह के गाने, नॉन फिल्मी गाने और जो एल्बम्स के गाने यकीनन बहुत बढ़िया आ रहे हैं. और संकेत जी का भी मैंने कल ही सुना था, फेसबुक पे जो आया हुआ था, उस पे यूट्यूब पे फिर देखा मैंने, बहुत बढ़िया. और ये वरिंडा के हमारे स्टार हैं, सिंगर हैं. अब आना कम हो गया है, लेकिन स्टार तो स्टार रहेंगे. बहुत ज्यादा विशेष देता हूं मैं मेरी तरफ से कि और आगे बढ़े, मिलियन से बिलियन की तरफ बढ़े. Ditendra, I'm curious to know, Sanket, he had sung on sustainability for Sadhguru. So I want to know that story. I'm very curious to know about that. If you can just share. Sure. तो ये तो सेव साइल मूवमेंट जब हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम पे हमने मैं और मेरे कुछ दोस्त, we were all very enthused about it. Even today we are enthused about it, because it was all about how to save the soil, create tree cover. That was the primary thing, tree cover, and save the soil. because इस साल हम लोग सुन रहे हैं अभी तक 50% कम रेन हुई है. जून आज 15th है, 50% कम रेन हुई है. अगर बारिश नहीं होती है, बहुत जल्द ही हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत गिरने वाला है. इट्स अ गिवन कि हमारी जो अभी इतनी नेचुरल आपदाएं, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज हो रहे हैं, इतनी जो वेदर पैटर्न से वो चेंज हो रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज हमने इतने सारे पेड़ काट दिए हैं. और हमने जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें बहुत सारा मॉडर्नाइज कर दिया है, बट उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो गया है. ऑर्गेनिक कंटेंट कहाँ से आता है? वो पेड़ के पत्ते से आता है, और कैटल वेस्ट से आता है, बेसिकली जो काउ डंग, उसी से आता है. वो अगर दोनों ही हमने हटा दिए, पेड़ भी हटा दिए और कैटल भी हटा दिए फार्म से, अब जो आएगा सिर्फ फर्टिलाइजर से आएगा, और जितना है सॉइल में वो चला जाएगा कुछ सालों में. तो जो न्यूट्रिशन हमें पहले मिलता था उसका अभी 100 साल पहले मिलता था उसका 1/10 मिलता है. 10 जो सेब, एक सेब से जो खाने में मिलता था वो अभी 10. तो ये जो हमें बहुत हार्ड हिट हुआ, और हम दोस्तों ने मिलके एक गाना बनाया था, क्या कर दिया बोल के. पार्थ, अभिषेक और धारक ने वो कंपोज किया था, और अजहर ने उसको लिखा था. बहुत ही प्यारा हमने बनाया था, और हमने वो शूट किया था, थोड़ा हार्ड हिटिंग वे में किया था. So that was kind of our way of sharing our story, how we felt. And I think it is one of the biggest things. And I know green veranda भी है आप लोगों ने, और वो आप sustainability और environment friendliness को promote करते हैं. I think this is one of the major causes that will require a lot of boost, because खाना ही सब कुछ है. Food is everything, like air is everything, food is also everything. And we are seeing with more of these pandemics and critical illnesses coming in. हमारा खाना अगर पौष्टिक नहीं हुआ, ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं हुआ उसमें, then it's going to be very difficult for future generations. तो यही था, इसी पे मैंने गाना बनाया था. और 2 लाइन प्लीज गुनगुना दीजिए. क्या कर दिया. This is a very different, let me see.
I'll have to just look up for that song because आज तक किसी ने उस गाने की फरमाइश नहीं की. Let me see. आज मैं एक्चुअली सुनने आया हूँ सबको, but still since you have asked for it. पंछी पहले से अब चहकते ही नहीं, कागज के फूल हैं महकते ही नहीं. पंछी पहले से अब चहकते ही नहीं, कागज के फूल हैं महकते ही नहीं. नदियों के पानी में अब वो रंग ना रहे, जंगल पहले से अब लगते ही नहीं. जब भी किया है गलत किया, क्यों इंसान किसी और का सोच के ना जिया. इंसान ये जिंदा जिससे रहा है, तबाह उसने उस मिट्टी को किया है. हवा सांसों के खातिर न बची है, सुबह अब वो पहले सी ना कहीं है. Yeah. So these were the, I just hummed a few lines. So that's how the song goes. It's about, so we made the song very, it was written in a way, highlight the problem and then highlight the solutions. So उस तरह से बनाया था. आप लोग definitely गाना सुनिए. It is one of the closest to my heart songs. This was beautiful. संकेत जी, एक क्वेश्चन आता है माइंड में. फॉर एग्जाम्पल यही प्रोजेक्ट जो जिसका अभी जिक्र चल रहा है, पहले धुन बनी या पहले बोल लिखे गए, आप बताएंगे हमें प्लीज. इसमें पहले बोल लिखे गए. तो मेरे गाने में ऑलमोस्ट 95% पहले बोल लिखते हैं, फिर गाने का धुन बनता है, विच इज वेरी मच कॉन्ट्रडिक्टेड टू व्हाट हैपेंस टुडे. तो एक्चुअली मेरे दोस्त जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं एक्चुअली लिरिक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ. और so either the melody has to be outstanding or the lyrics have to be outstanding, and ideally to start with and sing. उसके बाद तो दोनों का मर्ज हो जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है. लेकिन लिरिक्स पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैसेज क्या देना है, व्हाट इज द मैसेज. वो मैं हर गाने में सोचता हूँ कि इसका मैसेज क्या है. इफ देयर इज नो मैसेज इन द सॉन्ग, इट इज लाइक लव सॉन्ग बनाने के लिए तो मैं भी बनाता हूँ, बट उसमें अगर आई कैन डू ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. हर एक गाने के बाद मुझे ये लगता है कि अरे मैंने एक और गाना कर दिया पर उसमें मैसेज नहीं गया. तो जैसे मैंने अभी ये पापा फादर्स डे के ऊपर गाना बनाया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ, बिकॉज उसका एक बहुत ही अनोखा लॉन्च करने वाले हम लोग. पर मैं हर बार सोचता हूँ कि कुछ मैसेज वाले गाने बने, लाइक आइदर ये क्या कर दिया जो सॉइल कंजर्वेशन पे था, फादर्स डे का गाना बनाया है मैंने, रक्षाबंधन पे बनाया था गाना, मैंने कोविड पे बनाया था, मैंने आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर बनाया था, हाउ दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज प्रोटेक्टिंग द नेशन फॉर आवर सेक, उन पे बनाया था. मैंने मुझे जो सोशल कॉजेज लगते हैं मैं सारे उसी टाइप के गाने बनाता हूँ. और अभी छुपोर्णोदा के अंडर में वो उनके भी गाने मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे होते हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज ही इज माई गाइडिंग लाइट. तो ही टेल्स मी कि कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ वैसा बनाते हैं, आज कुछ अजब सा ही करते हैं. आई जस्ट लाइक एवरी टाइम आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम. तो ऐसा है बस. तो मैसेज, आई थिंक मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स लिरिक्स कम्स फर्स्ट देन द म्यूजिक. अनलाइक आई थिंक ज्यादा आजकल म्यूजिक होता है. इनफैक्ट मैं दोस्तों को बोलता हूँ कि आजकल जो म्यूजिक लेबल्स में ले जाते हैं गाने, वो पूरा प्रोड्यूस्ड गाने मांगते हैं. मतलब उनको ना वो हुक लाइन क्या है उनको चाहिए होता है. हुक लाइन क्या है, हुक लाइन का ठीक है, मतलब इट इज अ ट्रेंड, बट मैं कभी भी प्रोड्यूस्ड गाना सुनता नहीं हूँ. मैं बोलता हूँ कि मुझे बस बेसिक मेलोडी विद द वर्ड सुनाओ. आई डोंट वांट द हुक लाइन. आई डोंट वांट कि क्या जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हुआ है सुनो. तो आई जस्ट वांट टू हियर द मैसेज एंड वो मुझे छूता है, दिल को छूता है, तो यस, ओके.
That is wonderful, and that is an interesting segue to Kshitij, who is a young guy. और क्षितिज, हमारी तो म्यूजिकल जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है, अनलाइक संकेत जी जो कि सीख रहे हैं बट काफी सीख चुके हैं। तो क्षितिज, हमें संकेत जी से पता चला पहले धुन आई या पहले बोल आए, और उन्होंने कुछ अपने इनसाइट्स उस पर शेयर किए। तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कुछ नगमा, कुछ नॉन फिल्मी, क्या आप हमारे लिए आज गाना चाहेंगे? मैं तो गुड इवनिंग संकेत सर, गुड इवनिंग देवीदत्त सर और पूरी वेरेंडा फैमिली को गुड इवनिंग। तो आज जो मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ वो अदनान समी जी का है, तेरा चेहरा। तो स्टार्ट करता हूँ। प्लीज गो अहेड। ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा, बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा, तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, छुप जाए, हो ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। Loved it, Kshitij, loved it. Thanks for singing this one. Thank you so much. थैंक यू। आप साउंड भी कर रहे थे कुछ कुछ अदनान सामी जी की तरह, और बहुत मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। थैंक यू। एंड मैं नमस्कार करना चाहूंगा रूबी जी को, पूर्णिमा जी को। तो रूबी जी, आज शाम बात हो रही है इंडिपेंडेंट म्यूजिक की, नॉन फिल्म म्यूजिक की, और हम जानते हैं कि अगर हम बंगाली कल्चर की बात करें तो खजाना इतना भरा हुआ है जिसकी जो कि अनलिमिटेड है कहीं ना कहीं। हम ऑफ कोर्स फॉर अस कॉमन पीपल इट इज मोर ऑफ रविंद्र संगीत एंड नजरुल गीती, जिसका हमने नाम सुना है, उस किस्म के गाने सुने हैं। शायद ये गाने फिल्मों में भी यूज करे गए होंगे, बंगाली फिल्मों में, बट उसका बहुत ज्यादा मुझे इल्म नहीं है। बट हाँ, कुछ नॉन फिल्मी आर्टिस्ट आपके दिल के करीब है जिनका आप नाम लेना चाहें इस शाम, तो प्लीज हमें भी अवगत कराएं कुछ ऐसे आर्टिस्ट से जो यूजुअली नॉन फिल्मी गाने गाते हैं, और अगर कुछ लाइंस भी आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। नॉन फिल्मी गाने तो बहुत है, बंगाली में सुनाओ क्या? श्योर मैम, श्योर, वुड लव टू लिसन। ये टेगोर का सॉन्ग गा रही हूँ।
জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো, ধন্য হলো মানব জীবন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে, নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায় বেড়ায় ঘুরে, শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি, গানে গানে গেথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি। তোমার যোগে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি, গানে গানে গেথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি। এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি, এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি, জয় ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন, জগতে আনন্দ যোগে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হলো, ধন্য হলো মানব জীবন, জগতে আনন্দ যোগে আমার निमंत्रण। ये वाला सॉन्ग एक्चुअली ना रविंद्र संगीत नजरुल थी, जहाँ जो भी, थैंक यू सो मच, इसमें जो संचारी का पोर्शन रहता है ना ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसलिए मैंने संचारी भी गाया। तो और प्लीज बताएं कि किन्होंने गीत गाया है, आपने किन का वर्जन सुना है? एक्चुअली ये ना बहुत सारे आर्टिस्ट, अजय चक्रवर्ती जी ने गाया, फिर काफी सारा आपको किसका पसंद आया, मतलब आपने किसी को फॉलो किया? श्रावणी सेन बहुत अच्छा गाती है, और जयती भी बहुत अच्छा गाती है, तो सबका मैंने सुना, उसके बाद अपने हाँ तो बहुत ही अच्छा गाना है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल था, और पूरी खुशबू थी बंगाली कल्चर की इस गाने में, और उस गायन शैली की भी, जिस तरीके से गाने का पैटर्न होता है। हाँ, ये थोड़ा क्लासिकल बेस गाना है, तो क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर अपने भी बहुत सारा राग उन्होंने बनाया अपना, सारे अपना ताल भी उन्होंने बनाया, उनको बहुत मतलब अच्छा गानों में ना उन्होंने ताल अपना बनाया, जैसे सूर फाक ताल होता है ये, उसमें 16 मात्रा होता है, वो गाना मैंने एक दिन सुनाऊंगी, जननी, वो ब्रह्म संगीत है,
तो उसमें भी बहुत अच्छा 16 मात्रा का गाना है, ब्यूटीफुल गाना है ब्रह्म संगीत। क्या बात है। So independent music actually means getting to hear a lot of new stuff, यानी कि जो कि एक्सपेरिमेंटल होता है। म्यूजिशियंस तो आए दिन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सुर के साथ, ताल के साथ में भी, अरेंजमेंट के साथ या कभी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और वो सभी एक्सपेरिमेंट्स का जो हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद गैर फिल्मी म्यूजिक या इंडिपेंडेंट म्यूजिक के जरिए मिलता है, बिकॉज दैट इज वेयर पीपल डू टेक रिस्क एंड डू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर फ्रीली। और इसी के साथ संकेत जी, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, this whole evening has centered around independent music. Which are some primary platforms of independent music in India who are promoting this kind of music, or platforms with whom youngsters could seek to associate themselves with? श्योर तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं कि यू नीड टू रियली टेक अ कॉल, और देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बिकॉज ये क्या है कि आजकल जैसा एनेबल करती है टेक्नोलॉजी वैसे ही डिसरप्ट भी करती है। तो जो आज बहुत ही उम्दा है वो कल शायद उम्दा नहीं रहे। तो यूट्यूब definitely one of the port of call is YouTube, and doing shorts on reels on Instagram or shorts on YouTube definitely आपको रीच देती है। आप कवर्स भी गा सकते हैं आपके। आजकल एक और नया ट्रेंड जो काफी चल रहा है वो है कि लोग डिवोशनल सॉन्ग्स सेम धुन पे, फिल्मी धुन पे डिवोशनल सॉन्ग्स गा रहे हैं, एंड इट्स रियली वर्किंग वेल। बहुत ही अच्छा सुनाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो प्लेटफॉर्म्स में तो डेफिनेटली यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब काफी 1 मिनट से कम अगर हो तो वो काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप ऑडियो की बात कर रहे हो, जैसे मैं 1 मिनट म्यूजिक में जो भी है ट्रेंड है, पर मुझे वो डीप जब तक अंदर तक नहीं जाता है तो वो मजा नहीं आता है मुझे। तो 1 मिनट में मुझे मजा नहीं आता है। मैं अगर किशोर दा के गाने सुनता हूँ तो एक ही गाना 10 बार सुनता हूँ, या रफी साहब के गाने सुनता हूँ, हेमंत दा के गाने सुनता हूँ, एक ही गाना 10 बार सुनता हूँ, तब भी मेरा मन नहीं भरता है। एंड ये 1 मिनट वाला इज ऑल गुड, अच्छा है, ट्रेंड है, बट अगर आपको प्रॉपर गाने करने हैं, गाने के ड्यूरेशंस भी कम हो गए। पहले डेफिनेटली 2 अंतरा तो होते ही था, तो 6-7 मिनट का गाना ऐसे ही होता था। प्रिलूड में जितना म्यूजिक होता था उसमें आपका पूरा गाना का गाना बन सकता था आज के हिसाब से। पर आज 3 मिनट से गाना ज्यादा होता ही नहीं है। 5 मिनट के गाने अगर मतलब आप यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। तो बट जब आप ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वीडियो का तो सिंपल है, सारे प्लेटफॉर्म्स, एवरीवन इज फ्री टू यूज फॉर एनीवन। बट ऑडियो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यू हैव टू गो थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपके कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कवर्स पे कुछ कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, तो सम ऑफ द सॉन्ग्स डोंट हैव दोस कॉपीराइट इश्यूज, but many of the songs of some prominent labels will not allow you to upload covers through the distributors onto the streaming platforms. तो जो distributors हैं उसमें काफी सारे नाम अभी there are quite a few leading names there. एक तो जो हंगामा आर्टिस्ट अलाउड है, बिलीव है, ऑर्चर्ड है, ट्यूनकोर है, डिस्ट्रोकिड है, there are so many of them, and all of them are you have to I have tried and tested each of them, most of them, and there are pros and cons of everything, but it's just a tool. In fact, what is good today may not be good tomorrow. आज जो आपको लगे कि ठीक है, अगर आप क्वांटिटी मतलब कंटेंट बनाते रहे तो आपको वो पता चल जाता है कि कौन सा अच्छा है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको गाना डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको मतलब 1000 रुपए में यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अ सॉन्ग, एंड इट विल गो ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, राइट फ्रॉम Spotify to Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, हर जगह जाएगा, Instagram Reels पे जाएगा, हर जगह। Maybe just $1,000 is all you need if you go through one of those, like DistroKid or TuneCore, उस तरह से अगर platform से जाते हो। So, and many of them don't even charge you money. It's either you pay, that $1,000-$1,200 जो लगता है, or else you do a revenue share. Some of these platforms even give you a revenue share if they know that you make a lot of content and your content really has some demand. They will agree with you for not a payment but a 80-20 or a 70-30 share, where 70% goes to you as an artist, 30% goes to them.
तो वो डिपेंड्स लेबल टू डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करता है। एक बार आपने गाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जिस डेट रिलीज होने वाला है उस दिन आपकी हर एक प्लेटफॉर्म में वो गाना अवेलेबल होगा। I have a question, Nitin. Yeah. Sanket, what is the revenue model? This is the most interesting question. Okay, this is the most interesting question. Now, see the revenue model एकदम shrink हो के अभी बस एक तार जैसा हो गया है। इसीलिए there is no investment. That's why I think this is the best time for independent music, because there is no investment happening in music because there is not much revenue. सपोज कोई कुछ ट्रेंडिंग कर रहा है तो मे बी देयर इज रेवेन्यू। म्यूजिक में क्या है कि बहुत एक्सपेंस होता है, इट्स अ कोलैबोरेटिव थिंग। इट इज नॉट लाइक यू जस्ट पुट ऑन द कैमरा, जस्ट अगर आपको कवर करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बना रहे हो गाना तो यू नीड अ लिरिसिस्ट, यू कैन राइट ऑल्सो, दैट इज फाइन, बट यू नीड अ कंपोजर। इफ यू कैन डू दैट, दैट्स फाइन। यू नीड अ मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर, you need a distributor to distribute, you need someone to do some kind of either a video or some kind of animation or something. तो ये जो director होगा, editor होगा, there's so many things, it requires an investment. Now whether that investment will be recouped or not, अगर आप दिल को छूने वाले गाने करते हो, हम अगर दिल को छूने वाले, तो अगर ट्रेंडिंग हुआ गाना तो डेफिनेटली मे बी यू कैन रिकवर एंड इट कैन वर्क वेल, बट वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसका फ्लिप साइड ये है कि एक्सप्लोजन हो रहा है आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। एक्सप्लोजन टू द एक्सटेंट, एक तरफ से फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल ही बंद है। अगर आप पूछो कि लास्ट 3 साल में आपने कौन सा बड़ा हिट गाना सुना है फिल्मी म्यूजिक का, आपको जस्ट 1-2 गाने दिमाग में आएंगे, जहन में आएंगे, केसरिया, वेयरएज लास्ट अगर आप आप इवन 90s की बात अगर करो, आप एक मूवी का नाम लो, आप अभी के अभी आपको 4 गाने लगेंगे। वीर ज़ारा आपने फॉर एग्जांपल लिया, में चारों के 4 और पांचों के पांचों गाने यार मास्टरपीस, या फिर कल हो ना, व्हिचएवर, आप मेजॉरिटी अच्छे गाने थे। वेयरएज आज गाने, पहले तो मूवीज हिट नहीं होते, मूवीज का ही जो वो होता है, बैंडविड्थ होता है, वो 1-2 दिन का होता है, वो वीकेंड में चला तो चला, नहीं तो पिट गया। तो उसके गाने भी वैसे ही हैं। तो बस तो उसकी वजह से अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक को मौका मिला है, पर उसकी वजह बिकॉज ये अभी बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, एनीबॉडी कैन पुट आउट देयर सॉन्ग, तो कंटेंट बहुत सारा है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Revenues, on the other hand, is only when you really become viral, number one, which I will never vouch for because I am never looking for virality. The other way to get money is through shows. Once you become popular, it is a slowly एक building की तरह से, आपको foundation की तरह से layer to layer करके बना के then only there is a monetization. तो यहाँ पे जो पहले होता था, लोग गाते थे, बस गाने में ही the journey itself is fulfilling, right? उस हिसाब से अगर कोई जाता है, जैसे मैं, आई एम जस्ट लविंग दिस जर्नी, एक टाइम था जब मैं रियली लगता था कि अरे ये भी गाना हिट नहीं हुआ, अरे ये भी नहीं चला, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि इफ इट्स अ हिट, इट्स अ ग्रेट थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट देन ये गाना कंपोज करना, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, इतने लेजेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना, सीखना, जस्ट मेरे मन को जो सुकून देता है वो करना, इट्स अ फुलफिलमेंट। इफ यू जस्ट एंजॉय द जर्नी, आई थिंक वही सबसे बड़ा फुलफिलमेंट है। रेवेन्यू मोनेटाइजेशन जो है, दैट इज अ आउटकम, एंड यू कांट वर्क विद एन आउटकम इन माइंड, बिकॉज एक्सपेंस है बहुत सारा। अच्छा क्वालिटी म्यूजिक बनाने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड थ्रू द प्लेटफॉर्म्स अनलेस which is the probability is very low, the song goes viral, then definitely then kind of throws up in a lot of ways, but you can't pin down on that. If you want to, like for example, मैं बोलता हूँ मुझे हजारों गाने करने, मेरा वो है, whether it is a flop or a hit, I will just keep on doing meaningful music, and I will just do music with anyone that I like, in terms of उनका music अच्छा लगा, उनका lyrics अच्छा लगा, bring them together, do that, वो मुझे अच्छा लगता है, and that's why I feel that somehow that I am self-sufficient helps me, because I don't need to rely on music for money. म्यूजिक मेरे लिए पैसे का जरिया नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बने। अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया है, मैं ना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपने टाइप की म्यूजिक करना चाहता हूँ।
और बस मुझे अच्छा लगता है, सुकून आता है, बस यही है मेरा। बाकी पैसे बनते हैं शोज से, जो और शोज में भी बहुत ही ज्यादा various platforms where you can do shows, but yeah, that is something where that generates revenues। और आप कवर्स भी कर सकते हो शोज के लिए अपने गाने हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े सिंगर्स हैं आज जो कवर्स के बेसिस पे ही बहुत सारे शोज करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो दैट्स व्हाट माय टेक इज। बट या फॉर मी monetization is secondary। I have something else taking care of the monetary part, and I just focus on music। Beautiful. Beautiful. So today we are talking to a purist. We know that, and nothing at all should come in the way of quality music. Nothing should taint the sanctity of this beautiful, piece of melody or the lyric. And it's wonderful listening from you, संकेत जी। और इस शाम को हम एंड जो है एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हार्ट वार्मिंग अनाउंसमेंट के साथ करेंगे। संकेत जी, इफ यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू आर गोइंग टू कम अप विथ, I could give a teaser of that first, and then you could maybe say a few words about that. Yeah? Sure. Please All go right. ahead. Coming up. All right, let's go for it one more time. Beautiful. The video was not that clear, but yeah, you could talk us through it, Sanket ji. Sure. तो ये थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस। तो एक बहुत ही मेरे लिए इट्स अ फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट वन ऑफ अ काइंड इवेंट। हम लोग मैंने ये मेरे दोस्तों के साथ, सजल जिसने ये गाना लिखा है, मेरा IMK का कलीग है, मतलब मेरे 4-5 साल जूनियर है मेरा, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके एंथम भी लिखा था IMK का। ही इज रिटन दिस सॉन्ग कॉल्ड पापा। एंड जतिन जो मेरे, अगेन मैंने उनके साथ काफी सारे गाने पे कोलैबोरेट किया है, तो उन्होंने कंपोज किया है। ये हमारा फादर्स डे स्पेशल विच इज हैपनिंग दिस संडे, उनके सारे फादर्स को कोमेमोरेट और उनको सेलिब्रेट करने के लिए गाना है। ऑल्दो आई थिंक एवरी डे इज अ फादर्स डे एंड वी शुड सेलिब्रेट इट। तो ये जो गाना है बहुत ही डिफरेंट एक एंगल है पिताजी के ऊपर, पापा के ऊपर, जो शायद ही किसी गाने में हमने सुना होगा। इसलिए मैंने बोल रही, इसमें भी पहले लिरिक्स लिखे गए थे, फिर म्यूजिक बना था। तो इसका जो लॉन्च हो रहा है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसका लॉन्च हम लोग एक ही साथ यूट्यूब पे और मेटावर्स कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त कपिल जैन, जो एक मेटावर्स का एक एंटिटी मैनेज करते हैं, को फाउंडर है उसका, पायरो स्पेस बोल के, वहां पे वो कल ये गाना 7 o'clock we are going to release this song on Metaverse. It's a one of a kind event. I don't know how many people have done this in India. It's a video launch. Gaana already audio streaming platforms pe hai, but video launch is happening tomorrow at 7 o'clock on this particular platform. मैं उसका लिंक यहाँ पे देने वाला हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। It's an entirely virtual world where avatars exist. तो आपका अवतार रहेगा वहाँ पे। I was myself baffled and totally, kind of really perplexed वो देख के, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है कल के लिए। ये गाना one of the first होगा कि वो मेटावर्स में रिलीज होगा, and I look forward to welcoming you all and seeing you all for that event. मैं उस इवेंट की लिंक यहाँ पे डालता हूँ। I will just copy paste. Just give me 1 second. तो मैं ये आशा करूंगा कि आप सब गाने के लिए, we will all celebrate the song together, and I would invite heartily all of you to come and enjoy the launch of this song tomorrow.
this has a small registration process because ये जो metaverse है वहाँ पे you know they just kind of keep some guards there because at the end of the day it's a virtual world. So आप don't get scared. In fact, what I'll do is just before the event, I will take the direct link also and paste it. I'll send it to Anila ji. And those who are not able to register, maybe they can just directly join. But I would suggest that those who can, आप register करके आ जाइए. So at least you know organizer को पता रहेगा कि इतने लोग आने वाले हैं. And there is some technical backend जो उनको देखना पड़ेगा. So I am just looking forward to this. And thank you so much. एक गाना जो मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ because it's we are you know I think हम लोग यहाँ पे celebrate करते हैं music. इतनी बड़ी हस्तियाँ आ चुके हैं यहाँ पे. And I think it's this friendship that has kind of you know stuck us together through all these almost 3 साल हो गए हैं. I've come back again and again. Although I've missed last few months because I was you know traveling a lot, particularly to Calcutta. So I'll just hum a few lines of the song, which is about friendship, and I dedicate this to Music Veranda and all you lovely people out here. मेरे संग संग चल तू, मेरे यारा प्यार है तू, दोस्त है तू, प्यार है तू, यार है मेरा, मेरी दुनिया भी है तू, मेरा ये जहां भी है तू, प्रीत है, मीत है, विश्वास है मेरा, तू ही धड़कन में है, तू ही सांसों में हो, तू ही नस नस में है, तू ख्यालों में, तू दोस्त है, तू दोस्त है, तू दोस्त है मेरा, तू दोस्त है मेरा, तू दोस्त है मेरा. So That's cool. Beautiful. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much, Ruby जी. अच्छा, मैं भी ना गाना वाना भजन में जैसे सुर देती हूँ, ठीक है, कंपोज खुद करती हूँ. वर्डिंग्स मुझे लिखना नहीं, मतलब हिंदी उतना अच्छा से आता नहीं, तो मिल जाता है तो उसमें सुर वगैरह देती हूँ. और गाना वायरल कैसे होता है? इतना मैं तो देखो 2 साल से मैं गा रही हूँ, मेरा तो सब्सक्राइबर भी नहीं पता है. इसके बारे में तो शाहरुख खान को भी नहीं पता. I am the wrong person. मेरा एक भी गाना वायरल नहीं हुआ है. मतलब कैसे? I am hoping for a day जब मेरा गाना वायरल होगा. बट अभी तो मैंने इनफैक्ट आई शाई अवे फ्रॉम वायरलिटी. मैं बस अपने बिलो द रैप्स अंडर द रैडार मुझे गाना करते रहना है. यही मैं सोचता हूँ कि लाइमलाइट में आते ही ना, वो वायरल होते ही ना, लोगों का एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, ये तो यही करेगा, दिस इज व्हाट ही विल सिंग, दिस इज व्हाट ही इज, यू नो, ब्रांड हो जाता है, दिस इज व्हाट ही इज गुड फॉर, यू नो. एक मतलब थप्पा लग जाता है मेरे हिसाब से. तो मुझे पता नहीं रियली, मेरा कोई गाना वायरल नहीं हुआ अभी तक. डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे होता है गाना? जैसे आप बता रहे थे ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉन्ग. हाँ, वो बिल्कुल. कैसे? आपने अगर एक गाना बनाया है, सपोज आपका जो MP3 फाइल है या WAV फाइल है, वेब फाइल है, वो आप अपलोड कर सकते हो. देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म. जैसे एक है डिस्ट्रोकिड. मैं आपसे अलग से मैं अनिला जी को भी डिटेल्स दे सकता हूँ. डिस्ट्रोकिड है, ट्यूनकोर है, हंगामा आर्टिस्ट अलाउड है. यहाँ पे आप डायरेक्टली आइदर 2 मॉडल्स होते हैं. एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ 1000 रुपए ऐसे लगते हैं, या दूसरा होता है रेवेन्यू शेयर. तो रेवेन्यू शेयर के लिए उनका परमिशन लगता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप क्या बना रहे हो, क्वालिटी, ये वो काफी सारा होता है. पर अगर आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कोई कुछ आप डायरेक्टली जाके वो पेमेंट करके फी देके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. वो इमीडिएटली आपके रिलीज डेट पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे. और आप फिर उस गाने को यूज करके आप शॉर्ट्स बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, जहाँ पे भी फेसबुक में डाल सकते हो. तो वो सब आप घर बैठे कर सकते हो. हाँ, जो कवर में जो गाती हूँ, लता जी का, आशा जी का, सबका गाना गाती हूँ, तो वो खाली व्हाट्सएप में ही मैं देती हूँ, मैं शेयर करती हूँ. और कहाँ करना होता है?
कवर में कॉपीराइट इश्यूज होते हैं रूबी जी। हाँ। कवर में क्योंकि कवर में 2-3 लेबल्स ही खास हैं जो पुराने गाने पे सारा राइट्स है उनका, तो हाँ। वो कवर्स आपको अपलोड नहीं करने देंगे, अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक कर देते हैं। तो इसीलिए कवर्स आप बेटर है अगर आप खुद के गाने करें, या कुछ गाने हैं जिसपे कवर्स जिसमें कॉपीराइट नहीं है, बहुत ही चुनिंदे गाने हैं, बहुत ही कम गाने ऐसे, क्योंकि 2-3 लेबल्स ही थे पुराने जमाने में, वो काफी प्रोटेक्टिव है गाने के बारे में, विच इज वेरी वेरी लेजिटिमेट, राइट, उनका ही प्रॉपर्टी है वो। तो इसीलिए वो कवर्स पे रोक टोक है, आप अपलोड नहीं कर सकते ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप डायरेक्टली गाना चाहते हो, जब तक वो आपको स्ट्राइक नहीं देते, वो रहेगा प्लेटफॉर्म पे, पर अगर आप वो स्ट्राइक कर देता है तो वो चला जाएगा प्लेटफॉर्म। और इसीलिए रूबी जी, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिंदाबाद। आप कवर्स गाएं पर अपने आप गिटार बजा के गाएं, तो हो सकता है वही कवर वायरल हो जाए, क्योंकि उसको कोई खाली नहीं है। मुझे पैसा वैसा नहीं कमाना है, मुझे खाली गाना गाऊंगी, सब सुनेंगे मेरा गाना, यही है। मुझे गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। और अनिला जी, आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट, चाहे रूबी जी हो, संकेत जी हो, हम म्यूजिक प्योरिस्ट्स के साथ बैठे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक में इंक्लाइंड है या जो क्वालिटी काम करना चाहते हैं अबव ऑल एल्स। एंड दिस हैज बीन अ वंडरफुल इवनिंग। और अगेन, इवनिंग को रैप अप करने से पहले एक और खास अनाउंसमेंट। 23 जुलाई को दिल्ली में 2 बहुत खास बाप बेटे की जोड़ी आने वाली है। कौन? उदित नारायण जी और उनके सुपुत्र आदित्य नारायण जी। और Iris Events, Anila ji, please correct me if I'm wrong, but Iris is the event management company who is bringing the legendary Udit Narayan and Aditya Narayan ji to दिल्ली। और प्लीज bookmyshow.com पर जाएं, इस शो को चेकआउट करें, टिकट्स परचेज करें। एंड आई एम श्योर कि आप उदित जी और आदित्य जी का प्रोग्राम बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करेंगे। म्यूजिक वरांडा के लोगों से मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। एंड विद दिस वंडरफुल इवनिंग कम्स टू अ क्लोज। अनिला जी, मैं बस फायदा उठाना चाहूंगा, उदित जी का एक गाना मैं गा देना चाहता हूँ फटाफट। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे नो तारे नो तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। ए हे Beautiful, loved it. Thank you very much. So thank you so much आप सभी को। Good night everybody. Good night everybody. Thank you for tuning in. Thanks for joining in. I just want to say, Sanket and Deeptendu, it was like a master class. I have not liked it. In Music Veranda, we had so many shows, but this show is being so much of content. इतना कुछ जानने को मिला है आज, बहुत मजा आया। Thank you so much, Sanket, and thank you, Deeptendu, for suggesting us to curate this program. Because Deeptendu, thank you so much. हम लोग जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग जैमिंग करते हैं, रोज शाम को 9 से 10 मिलते हैं। And Deeptendu, most of the time he sings an independent song, you know, कोई independent album का कोई song आता है, and then he shares about that album or about that singer. So that is how we curated this program. He prompted us to curate a show and invite you because Sanket is the right person, and yes, he is the right person. So all the best, Sanket. Thank you so much. I am a learner. Thank you so much for calling me here, Anila ji. Deeptendu, you are such a great, such a nice, awesome host. Anila ji, you are always, you know, such a big support for everything. You encourage me for everything. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस सीख रहा हूँ। आप मुझे कुछ भी कहें। लॉन्च पे कल हम लोग सब आ रहे हैं। हाँ जी, प्लीज जॉइन मी। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑल देयर।
अवतार में मिलेंगे, आप सभी लोग अवतार में होंगे, मैं भी अवतार में होऊंगा। एक नया एक्सपीरियंस होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय वनंडा, थैंक यू सो मच।